महेश सर ने obviously बहुत खूबसूरत से कहा रिवर्स मेंटरिंग. So as a young filmmaker, एक युवा फिल्मर के बतौर पे आप how do you think the youth perceives horror in India and also the international markets? Good question. Very good. I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले and अभी का जो cinema है, it's very different. जब I had seen a show, a horror film, जो मैंने I think देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ हॉरर नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother daughter, a father daughter, a sister story. तो I think कि जब हम लोग वो when we imbibe an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. So that's what we've tried to do 1920 में कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Outside obviously your own family, which are the horror films which have sent a chill down your spine? I think there is one show that मैंने देखा था. It's called Exorcist. जो Exorcist film पे निर्भर थी, पर it was so scary and so emotional at the same time कि that was when I realized कि a horror film and an emotional film can be made into one. It's not necessary कि दोनों को separate रखना चाहिए. आज कहीं लगता है कि जो फीचर ड्रामा है, फीचर हॉरर है, वो थोड़ा आगे आ गया है, obviously aided by technology. और शायद whether it's dinosaur, or any other crocodile or meg. Yeah. इस चीज में कुछ कहेंगे आप? Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. It is also make anything that makes you scared is horror. Actually, I think अगर कोई एलियन अटैक हो रहा है या कोई क्रीचर आपके पीछे भाग रहा है, as long as it's a threat to your life, it's scary. And I think that is good कि cinema is growing enough that we are kind of experimenting with different kinds of horror. Otherwise cinema काफी boring हो जाता है. So it's a good thing, I feel. ये जॉनर का बड़ा टफ फेज से गुजरा है पिछले कुछ लास्ट डेकेड और so उनकी देयर इज becomes your head but just as a viewer I feel it's very tough. एक दौर था obviously राम से परिवार थे वही करते थे और फिर I think you guys revived it and thank you so much for that. Thank you. Thank you. Thank you so much. I feel this genre has a great recall value. I think India में शायद इतनी मेरे ख्याल में as विक्रम बार बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं, और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे, उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण, माहौल, इस किस्म के सेट्स, इस किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट नाउ इज एक्सेसिबल टू द टैलेंट ऑफ टुडे, कि ये 1920 में जो एक मैरिज है ऑफ द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी of Unreal Engine and I think that combined with a very basic earthy horror story with the family, क्योंकि देखिए तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत ही क्लियर है. इस तमिल फिल्म में जो है वो बिल्कुल हमें जहाँ पर कथकली, भारतनाट्यम का एक ओवर द बोर्ड जिसको सटल सिनेमा वाले बोलते हैं, वो इसके नज़दीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होता. तो आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैमिली एंड इट हैज़ गॉट स्पेक्टेकल. तो आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. हम अपोलोजेटिक महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे. मुझे तो लगता है कि आप क्या छोटी फिल्म देखने आ गए हैं, मगर आपको देखते हुए लगा कि ये कुछ खुला खुला सा है. ये इट्स अ बिग फ्रेम, इट्स अ लार्जर देन लाइफ फ्रेम. तो जब एक स्मॉल टाउन में 2 टायर शहर में आप एक 5-star होटल खोलते हैं at a price which is affordable, that becomes a very major attraction. It can't be only restricted to the metros where
the high class elite can afford it. This should be available to the people of India, who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. You know, जो हम तो भैया गेटी गैलेक्सी जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे, और 3 बजे के शो में अगर स्टॉल से ताली बजती तो हमको लगता था कि भैया कि अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे. तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने अब बिल्कुल अनअशेमेडली अप्रोच किया है, और हमको लगता है कि वी हैव हिट द बुल्सआई. भट्ट साहब, मेरा सवाल, जब राज से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, मरता क्या नहीं करता. कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा ही कर दिया था. ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की छड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन. अब हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे जो सीनियर कलीग्स थे, उनको भी डाउट था कि ये क्या बोलता है विक्रम, ये बोली क्या है. वी आर वेरी चेंज अवर्स. हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम दो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है, वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है, उसको खेलने नहीं देते. तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है. हमारी कहानी कहने की क्षमता, और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टारकास्ट फिल्म से ही हुई थी ना. जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त तो ये दौर था कि सिर्फ स्टारकास्ट की फिल्में चलती हैं. ऐसे में हमने दीनो मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो नॉट बिग स्टार्स, हॉरर ईडीएम के साथ में हमने ये कहा कि जता दिया अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं. तो कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रेंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को वो कर रहे हैं. वो बोलते हैं सब हो गया बहुत, हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर्स, एवरीबडी वांट्स नंबर्स. तो हमको 1920 क्योंकि बहुत कामयाब एक फ्रेंचाइज रही थी, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है, तो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके सामने बैठे. सर, आपका कुछ अनुभव है हॉरर, कोई ऐसे हादसे या कुछ ऐसे आपने कुछ अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी आत्माओं को या कुछ स्पिरिट को या कुछ ऐसी एक्टिविटी, अगर आप एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड. आप लोगों का अनुभव नहीं, मैं ये जरा खामोश. हाँ, आपका सवाल जरा. ऐसे हॉरर अनुभव आपको हुआ, कोई ऐसे डरावना अनुभव जिंदगी में, क्योंकि इतने साल आपने देखे हैं जिंदगी के, तो कोई ऐसा डरावना मोमेंट आपने अनुभव किया होगा कभी जिंदगी में? कोई बात 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट है लाइन. मुझे वो हॉरर जो है ज्यादा उससे डर लगता है जो हमारे घरों में एक द्वंद्व जो चलता है, आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं, या हम घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है. बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े डरती है. जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं, आप कैसे ये हॉरर फिल्म को ऐसी सुपरस्टिशियस बातों से जुड़ गए. तो मैंने कहा, इफ यू बिलीव इन गॉड यू विल बिलीव इन द डेविल. क्योंकि अगर आपने क्या डेविल को देखा है, तो मैंने कहा भैया आपने डेविल को नहीं देखा, क्या आपने गॉड को देखा है? तो नहीं. तो आई थिंक यू मस्ट गिव मी द राइट टू फील. वो कहीं पर, जैसे इस बच्ची ने कहा, डर जो है, हॉरर जो है, वो आपकी बेसिक सर्वाइवल इम्पल्स पे से जुड़ा हुआ है. तो मेरे लिए हॉरर ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है. बट द इडियम टू कीप यू एक्साइटेड, 10 मिनट आपको जोड़ना जो है
बिना आपके फ़ोन को देखे हुए ये आसान काम है नहीं। आपका कभी से पाला पड़ा कभी नहीं, क्यों? नहीं करना। मुझे बहुत डर लगता है। मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप कर। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज। थैंक यू। अमेजिंग। बहुत क्लैरिटी है और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी मुझे बिल्कुल इजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि वुड आई बी एबल टू डू दिस और नो, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे वन से इन सब का जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अलका जो आपको जानते हैं पर्सनली, अलका की फैमिली है, बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसा आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो तो आपको जानते हैं। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप कर। तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग्स ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत मीनिंगफुल है, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर अमेजिंग। थैंक यू। गिल साहब, मेरा सवाल आपसे, इसमें जो हॉरर हाथ निकाल ले भाई। VFX जो है बहुत मायने रखता है, इसमें आपने कितना VFX का इस्तेमाल किया, उसकी जरूरत थी? इसमें जो कृष्णा को ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करना चाहिए, तो वो चाह रही थी कि वरना ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है तो एक्टर जो है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा, मगर कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के या जितना नॉन VFX जो इन कैमरा कहते हैं वो करें, तो काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया है। बाकी ये कहानी जो है वो पोजेशन की कहानी है, तो पोजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि एक बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो अब तो बच्ची अपने आप में ही भूत बन गई है, तो ये क्या VFX करेंगे हम लोग, तो खुद ही जो है वो कर रही है अपना। तो फिनिश इट यार, ओके। तो भैया जिसने नहीं, अरे यार बस कर यार। हाँ, आपने जो ऐसा क्या होता है 1920 की बात हो रही है, और एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसको ए उसका पब्लिसिटी हम नहीं करेंगे, तू जाके ऊपर देख ले। क्योंकि 1920 में आपने आगा नहीं जोड़ने की कोशिश मत कर। कहना चाहते हैं? नहीं। देखिए, I respect your right to ask me this question. Now you must respect my right not to answer this question. क्योंकि क्या देखिए, हमारे पास बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का, ये नॉन स्टार कास्ट फिल्म है, तो हम इस वार्ता को कोई अदर इश्यू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द हॉरर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये हमारा तो बड़ा जरूरी हमारा सिंपल, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड मार्केटिंग। तो मैं आई रिस्पेक्ट योर राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, बट आई प्लीज आस्क यू टू गिव मी द right, and you must respect my right not to answer any and every question. Please. Thank you. Thank you. सर यहाँ पे प्लीज फोटो कैसे कंप्लीट होगा? लेफ्ट टू राइट लुक, गाड़ी जा रही है।
हाँ 1920 दौड़ नहीं हुआ बॉस। सोलो 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 सर एक आपका व्हाट्सएप सोलो सोलो व्हाट्सएप आपसे स्टार्ट करते हैं सोलो चल रहा यहाँ पे इधर रुके इधर देखिए यहाँ पे राइट में सेंटर में आपकी लेफ्ट में सोलो सोलो चलो सोलो सोलो सिंगल सिंगल हाँ मैडम जी रुके मैडम जी इधर देखिए मैडम इधर देखो मैम ये राइट दिया मैडम सेंटर में देखिए सेंटर इधर हाँ थैंक यू आइए आइए मैम मनोज फिल्म मेरा पहला